So welcome students, this is an domain 3 and here we will going to study about biotechnology and its application. See, biotechnology is relatively a new subject, uh, but the science is very old. But for you, for a plus 2 student or a intermediate student, this is a new kind of subject where you have to learn a lot of technique, uh, a lot of microorganisms, a lot of way through which you can use biology for the service of mankind. So biotechnology is a kind of study where you amalgamate life sciences things with technology, and the sole purpose is the uh, service of mankind. Correct? So biotechnology is an amalgam of biological phenomena with technology for the benefit of mankind, and there is a prescribed definition given by European Federation of Biotechnology, and it is the integration of natural science and organisms and its part. The ultimate goal is service of mankind, or if you broadly see, it's a commercial application study. Whatever you study in biology so far, if you have to given a task to commercialize those things, you have to study biotechnology, because those things go with the in the route of through the route of biotechnology. So the principle of biotechnology is in your syllabus. It is divided into two parts. One is genetic engineering and the second part is bioprocess technology. So genetic engineering is technique which is used to alter or to manipulate the genetic material, and introduction of these manipulated thing into an organism to see the effect. This is somehow a laboratory process. The second one is bioprocess engineering. If something is proven in laboratory, you need to produce it in a large scale. आपको ज़्यादा produce करने की ज़रूरत है, because the ultimate goal is to commercialize. This is a part of bioprocess engineering. Correct? So जो ये टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें we need to create recombinant DNA. We have to use gene cloning process and gene transfer, and the first DNA was constructed by Cohen and Boyer in 1972. देखो, I have put this figure to make you understand. The elaborated science will come one into after one step to another step, and at the end of these lectures this picture will again appear. देखो यहाँ पे सिंपली मैंने एक वेक्टर बनाया है और ये फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए. इस फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए को आपको इंट्रोड्यूस करना है इस वेक्टर पे. आपने इसको इंट्रोड्यूस किया, कैसे किया, क्यों किया, आने वाले लेक्चर्स में है ना. यहाँ पे इसका, यहाँ पे इस पोर्शन पे, इस पोजीशन पे, इस लोकेशन पे आपने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया. ठीक है. रिकॉम्बिनेंट जो आपका वेक्टर है वो तैयार हो गया. आपने इसको बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस किया एंड अलाउ इट टू डुप्लीकेट, ट्रिप्लिकेट, आई मीन डिवीजन के लिए आपने अलाउ किया फॉर सर्टेन आवर्स. जब एक सर्टेन ओडी पे पहुंच गया, एक सर्टेन कंसंट्रेशन पे आ गया, then only it is allowed to grow on a solid media. ये solid media is a media which provide nutrition to these microbes. ठीक है. तो इसमें आपने grow किया and you ultimately and finally you have chosen the positive colony. ठीक है. बहुत सारे प्रोसेस हैं. ठीक है. तो उस पॉजिटिव कॉलोनी को आपने चूज करके फर्दर कमर्शियल पर्पस के लिए आपने भेज दिया, या फिर कोई डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. आई मीन देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स. क्या टास्क है, इट डिपेंड्स. तो ये जो आरडीटी है,
recombinant DNA technology. It's a pure engineering. It's a pure engineering. तो कुछ टूल्स होंगे उसके. तो जो पहला टूल है वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. एंजाइम तो है, एंजाइम आप लोग सब जानते हो क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन को अल्टर कर दे, यही होता है ना एंजाइम. बट यहाँ पे इट इज द वर्ड रेस्ट्रिक्शन इज इनकॉर्पोरेटेड. ठीक है, एंजाइम तो है लेकिन उसमें रेस्ट्रिक्शन है. अब रेस्ट्रिक्शन क्या है अभी आपको पता चल जाएगा. तो अब क्या है, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं. ठीक है, ये क्या करता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को कट करता है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट. स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करता है. और कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में पाते हैं, बैक्टीरिया में मिलता है सबसे ज्यादा. एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए. गॉट इट. तो अब कोई चीज अगर नेचर ने दिया है तो बिना रोल का तो देगा नहीं. एंड इट इज फाउंड इन बैक्टीरिया. मोस्ट ऑफ द एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम which are known today mostly isolated from bacteria. अब बैक्टीरिया में इतना इंपॉर्टेंट एंजाइम अगर है तो उसका यूज क्या है भाई. अगर मैं एक लाइन में कहूं सर्वाइवल के लिए, यू नो बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है एंड इट इज इनकंसिस्टेंट थ्रेट फ्रॉम बैक्टीरिया ईटर्स. बैक्टीरिया ईटर मतलब बैक्टीरियोफाज होगा, वायरस से कंसिस्टेंट थ्रेट पे होता है. और भी थ्रेट्स हैं, इट्स नॉट अ सिंगल थ्रेट बट. तो अब क्या करता है कि अगर बैक्टीरियोफाज इस पर अटैक करता रहेगा तो क्या वो जो है बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा. तो ये एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म की तरह यूज होता है और इट यूज टू कट बैक्टीरियोफाज और इन्वेडर माइक्रोब एट ए स्पेसिफिक पॉइंट्स. ठीक है, बट वन मोर थिंग, if it has an ability to digest invaders DNA, invaders genetic material और जीन और डीएनए, तो क्या ये खुद के उसको नहीं कर डाइजेस्ट नहीं करेगा, कट नहीं करेगा बैक्टीरिया को भी. ठीक है, बिल्कुल कर सकता है. बट होस्ट डीएनए जो है ये प्रोटेक्टेड हो जाता है एक फिनोमेना है मिथाइलेशन का. ठीक है, सपोज ये बैक्टीरिया का डीएनए है. ठीक है, फाइन. सो इसमें यू नो ए टी सी जी 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 सी ऐसे कुछ भी होगा. फाइन. इसका जो एडेनिन ग्रुप है और साइटोसिन है इसमें मिथाइलेशन हो जाता है. इट मींस ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं टेम्पररी चेंज हो जाता है. वंस इट इज चेंज्ड, द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको हम लोग आरई बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फेल टू एक्ट, नहीं कर पाएगा, उस पे एक्शन नहीं ले पाता. तो जो होस्ट है वो बच गया, लेकिन जो इन्वेडर है इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय. Fine. This is a picture of a Caesar, and because objective question आता है कि which of the following is called molecular Caesar, your answer will be restriction enzyme. तो ये फिगर से आप याद रखना. हिस्ट्री बहुत पुराना है, इट्स अराउंड 50 years बैक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को फर्स्ट आइसोलेट किया गया था. फाइन. एंड फ्रॉम देन मोर देन 3, इसमें 3000 है, बट if I remember it's more than 5000 restriction enzymes को आइडेंटिफाई कर लिया गया है एंड more than 800 are commercially available in the laboratory. और सच बताएं तो without restriction enzyme you can't even imagine to run your cloning laboratory, your genetic engineering laboratory. उसके बिना काम ही नहीं चल सकता है. अब एक्शन कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या है. अब आपको रेस्ट्रिक्शन वर्ड का मतलब समझाते हैं. सी, ये 6 न्यूक्लियोटाइड का या 8 न्यूक्लियोटाइड को आइडेंटिफाई करता है. ये स्कैन करता है
उस पोर्शन को जिसको ये क्लीव कर सकता है, उस पूरे के पूरे लेंथ को वो स्कैन करता है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन, आई मीन रिकग्निशन एंड क्लीविंग, ये दोनों प्रॉपर्टीज इसमें होती है। गॉट इट? स्कैन किया, पता चला कि अच्छा इस पोर्शन पे मैच कर रहा है, इस पोर्शन पे मैच कर रहा है, इस पोर्शन पे मैच कर रहा है, चलो यहाँ कट कर दो। ऐसा नहीं है जैसे डीएनएज होता है, डीएनएज जैसे डीएनएज है, इसमें कोई रिकग्निशन कैपेबिलिटी नहीं होती है। आपने उसको डीएनए में ऐड किया, ठीक है, डीएनए में आपने ऐड किया इसको, और ये पूरे को डाइजेस्ट कर देता है। इसमें कोई रिकग्निशन कुछ नहीं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज डिफरेंट फ्रॉम डीएनए, याद रखना। और एक चीज याद रखना, और जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब यूज करके किसी डीएनए को आप डाइजेस्ट करते हो, तो आपको दो तरह के एंड प्रोड्यूस होते हैं। एक तो ब्लंट एंड प्रोड्यूस होता है, ब्लंट एंड इस तरह का होगा, और एक स्टिकी एंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि स्टिकी एंड ज्यादा स्ट्रांग होगा या ब्लंट एंड ज्यादा स्ट्रांग होगा? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आगे क्लोनिंग में इस कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है। देखो, ब्लंट एंड मतलब ऐसे हो गया, ठीक है। आपने जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इसको ब्लंट एंड कट कर दिया, तो उसको फर्दर ऐड करना लाइगेज के थ्रू मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन जहां स्टिकी एंड है, इस तरह से यहाँ पे आपने लाइगेज यूज किया, और ये जब आपस में स्टिक होगा, एडिशन होगा, तो उसमें वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस स्टिकी एंड restriction enzymes are preferred for cloning. This you have to remember, याद रखना इस चीज को, ठीक है। ब्लंट एंड अगर क्रिएट होता है तो हमारा काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, और ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं बहुत डेप्थ में नहीं लेकर जाऊंगा, ठीक है। तो ये आपने पहला टूल आज पढ़ लिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और दूसरा टूल है आपका वेक्टर। एक और टूल है दैट इज लाइगेज। लाइगेज मैं ऐसे आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू learn about the plasmid then cloning process. So thank you, bye bye.